today we'll go to the lateral view X-ray. Okay, so if you take a chest X-ray in the lateral view, what are the different parts that you have to see? So that will be indicated here. And if you see here, see, this is a schematic view of a lateral X-ray. Okay, schematic view of the lateral X-ray. And the point number one, so that this particular point, so that indicates superior vena cava. So that will indicate the superior vena cava. And so this particular part, so that will indicate the superior vena cava. And point number 2 is ascending aorta. So if you see 2, ये वाला जो portion है, okay, so this is actually the area of ascending aorta. Now this is a lateral view X-ray. ठीक है, lateral view का X-ray, उसमें कौन कौन सा part है हम देख रहे हैं. और number 3 is nothing but anterior junctional area. So this is anterior junctional area. And number 4 is right ventricular outflow chart. Right, number 4, this is right ventricular outflow. Right ventricle का जो outflow area है ये. And also the main pulmonary artery. So there will be 2 things, main pulmonary artery or right ventricular outflow. ठीक है. Number 5 is right ventricle. So ये जो portion है right ventricle. See, when you take the PA view of the chest X-ray, right ventricle is not clearly seen, isn't it? So, but left ventricle is seen, left atrium is seen, right atrium is also seen, but right ventricle is not clearly seen. But the benefit with this X-ray is you are able to visualize the right ventricle also. So this portion actually, so this is nothing but right ventricle. This is actually right ventricle. Now, so next comes point number 6, that is right hemidiaphragm. So ये जो portion है, this is right side का diaphragm है, और ये left, ये जो 7 है, so this is left side का diaphragm है, क्योंकि हम lateral X-ray दिख रहे हैं, lateral view में देख रहे हैं, तो 7th जो है ये left है और जो 6th जो है ये right है. This is right. Okay. Now this is one part. Okay. So you make it very clear. Now again we move to the next part. Yes. So this is again the point which has to be seen in the chest X-ray lateral view. Some of the more points हमने देखा वहाँ पे 7 points देखा. Point number 8 यहाँ पे है, सबसे ऊपर है. So are you able to see the cursor? Yes sir. Yes sir. Point number 8. So this part, so this is nothing but trachea. Trachea यहाँ पे सबसे ऊपर है, tracheal portion है. ठीक है, ये जो लाइन आ रहा है यहाँ पे, so this is trachea. And 9th area is aortic arch. 9th area is aortic arch. And 10th area is aorta pulmonary window. So ये जो portion है, ये तो right ventricle था, ठीक है, और यहाँ पे आपका pulmonary trunk आ रहा था, और ये आ गया aorta pulmonary window. 10th left pulmonary artery. 11th, see ये जो portion है, so this is left pulmonary artery. This is left pulmonary artery. Then left main stem bronchus. Now this is very important. 12, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आता है आपका लेफ्ट. सो इस एक्सरे में देखेंगे तो ये वाला एरिया यहाँ पे जो ब्लैकिश डॉट जो दिखा रहा है जिसमें हवा है, सो वो ब्रोंकस है. ओके, सो लेफ्ट ब्रोंकस. सो दिस इज लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस. एंड देन 13 नंबर, दिस इज लेफ्ट एट्रियम. एंड 14 नंबर, ये जो पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल. ये जो पोर्शन क्या है यहाँ पे, ये राइट वेंट्रिकल है. This is right ventricle, this is left ventricle, and this is the pulmonary window. So ये जो 10th वाला portion है, that is pulmonary window. ठीक है, and this is the main pulmonary artery, left pulmonary artery, and now this portion is a bronchus. If you look into the same over here, okay. Now question, point number 1, which is the one. Point number 1 क्या था? superior vena cava. ठीक है, पहले जाओ superior vena cava कहाँ पे है. पहले इसमें देखो लेफ्ट वेंट्रिकल 14. सो दिस इज द पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, उसका जस्ट ऊपर है लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, सो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे. देन सॉरी, यस, ओके, दिस इज द डायाफ्राम. सी पॉइंट नंबर 7.
पॉइंट नंबर 6 and 7. सो ये जो डायफ्राम है ये लेफ्ट साइड का है और ये जो डायफ्राम है ये राइट साइड का है, ठीक है, ये जो दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे ये जो एरिया आ रहा है, सो दिस इज नथिंग बट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम पोर्शन। ओके, नेक्स्ट दिस पोर्शन, दिस इज ब्रोंकस, द मेन स्टेम ब्रोंकस। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 12 में जो है वो यहाँ पे है। 12 से ऊपर क्या था, पल्मोनरी आर्टरी। 11, पॉइंट नंबर 11। ओके, सो दिस, ये जो पोर्शन है, ये जो जा रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, सो दैट कम्स ओवर हियर, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, एंड 10 इज अ पल्मोनरी विंडो, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज पल्मोनरी विंडो। ये राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से ये आ रहा है ना, पल्मोनरी आर्टरी राइट एट्रियम से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से, सो दिस इज पल्मोनरी विंडो। देन आयोटिक आर्च, पॉइंट नंबर 9। सो यू हैव टू फाइंड आयोटिक आर्च इज समवेयर ओवर हियर, इतना क्लियरली नहीं विजिबल है इसमें, नेक्स्ट एक्सरे में देखेंगे। ओके, आयोटिक, एंड हियर कम्स द ट्रेकिया। नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ब्लैक शैडो, ठीक है, so you are able to see this black shadow, so this is actually trachea. Now trachea is divided into two parts, right and left, and this is a left main stem bronchus, right इस साइड में आ गया, राइट उस साइड में, दूसरे साइड में चला गया, तो ये जो है लेफ्ट साइड ब्रोंकस, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे ब्रोंकस है। ओके, नाउ 8 ट्रेकिया हो गया। 9th ट्रेकिया अगर ये है तो यहाँ पे आएगा आपका आयोटिक आर्च, यहाँ पे आएगा आयोटिक आर्च, एंड दिस आर द स्पाइंस, वर्टेब्रा का ये स्पाइंस है। ओके, दिस इज अ लैटरल व्यू ऑफ द एक्सरे, सो दिस इज अ वर्टेब्रल बॉडी, सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एक्सरे। नाउ गो फर्दर। ओके, द फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट यस, पॉइंट नंबर 1 में क्या था, फर्स्ट में superior vena cava, I think, isn't it? So this is a portion of superior vena cava. Now we have to find out same portion over here. Okay, somewhere here there will be superior vena cava. Okay, superior vena cava is there. What is point number 2? Point number 2 is I think aorta, ascending aorta. Ascending aorta. So यहाँ पे जो आपको आएगा, ये जो है एरिया हो गया, ये हो गया, yes, somewhere here there will be ascending aorta. देन ascending aorta का नीचे क्या है, पॉइंट नंबर 3, विंडो, जंक्शनल एरिया। हाँ, जंक्शनल एरिया है, सो जंक्शनल एरिया के नीचे आ गया आपने, तो समवेयर हियर द जंक्शनल एरिया, देन हियर कम्स द कोस्टोफ्रेनिक एंगल आ गया ये, ठीक है, तो ये डायफ्राम का डोम आ गया, ये डायफ्राम का डोम आ गया। और अब देखना है पॉइंट नंबर 5 क्या था, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, सो द राइट वेंट्रिकुलर एरिया यहाँ पे आएगा, सो हियर यू विल हैव द राइट वेंट्रिकुलर एरिया, सो यू विल हैव राइट वेंट्रिकुलर ओवर एरिया ओवर हियर। देन दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिया 6th। 4th एरिया क्या है, जंक्शन है, 4th एरिया जंक्शन है शायद, है ना, आउटफ्लो चार्ट, ठीक है। सो नाउ कम ओवर हियर, दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पोर्शन यहाँ पे आता है दिस कम्स अराउंड द हाइलम। ओके, हाइलम पोर्शन में एक तो मेन रहेगा ब्रोंकस, और उसके बाद आएगा आर्टरीज, और उसके बाद आएगा लिम्फ नोड्स, ये 3 स्ट्रक्चर रहता है हाइलर एरिया में। ओके, वेन भी रहते हैं ना सर, हाँ, पल्मोनरी वेन, that is vessels, there will be vessels will be there, then bronchus will be there, and then there will be lymph node will be there. So these are the three important structures which are present in the hyaline portion. So you have to see all the 3. Now if you see this portion, the blackish portion यहाँ पे जो दिख रहा है, so this is nothing but the bronchus, left main bronchus. Now जो whitish portion यहाँ पे आपको जो दिखाई पड़ रहा है, okay, the whitish portion, actually this is a portion of the vessels. Okay, vessels. What actually happens is sometimes these vessels are become big. तो ये जो वाइट पोर्शन है वो बहुत ब्रॉड दिखेगा या बड़ा दिखेगा, सो दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्जेनिटल कार्डियक प्रॉब्लम्स। जब कॉन्जेनिटल कार्डियक प्रॉब्लम्स होगा लाइक VSD, देयर विल बी ओवरफ्लो ऑफ द ब्लड इन द पल्मोनरी ट्रंक, वी नो दैट, सो बिकॉज ऑफ दैट द वेसल विल अंडरगो डायलेटेशन, और ये जो शैडो है ये बहुत ब्रॉड दिखेगा आपको। ओके, सो दिस इज नथिंग बट पल्मोनरी ट्रंक एंड एज वेल एज आयोटा, सम पल्मोनरी ट्रंक। Okay, then comes the lymph nodes. So lymph nodes are not actually made visible here.
ओके, सो दिस थ्री थिंग्स, जब भी आप हाइलम को देखेंगे दिस थ्री थिंग्स हैज टू बी ऑलवेज अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ ये हो गया. देन यू कम टू दिस पॉइंट. व्हाट इज एरिया नंबर 13? 13 क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम. ओके, सो एंटेरियर पोस्टीरियर में तो सर बस वो दिख रहा था ना, हमें अपेंडिक्स. हाँ, अपेंडिक्स दिख रहा है. यस. So this is a back portion, that is the spines and vertebra. So this is how you have to understand this. Okay. Now we move on to next one. Yes, if you want to see the same thing, you can go over here. उसी को हम समझ रहे हैं, lateral view of X-ray. This is also a lateral view of the X-ray. And just read this. See, if you see again, the left main branch of the bronchus, left main bronchus is present over here in the central portion, जो हम दिखा रहे थे, whitish blackish dot. Then this is the scapular portion. Okay, right atrium is coming over here. Then left ventricle. Then comes infravena cava. This is हो गया costophrenic angle, right? And this is the right costophrenic. This is the left costophrenic. Okay, now here comes, this is the ventricular portion, gastric shadow. This is the sternum. ये सामने से लिया है ना, ये सामने से, इस साइड से. ये पीछे का पोर्शन है. यहाँ पे आपका वर्टेब्रा सब, सॉरी. ओके, हाँ. So this is manubrium sternae, posterior surface of the arms, humerus, etc. This is almost all the same picture. ठीक है. Now you can see over here. So this is what I am telling. The first picture, what you are seeing in the first picture, this is a pulmonary artery. Okay. So ये जो hilar area यहाँ पे pulmonary artery, and this is right ventricle. ओके, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे है, राइट वेंट्रिकल ऊपर है. जो पीए व्यू में हमें नहीं दिख रहा था वो राइट वेंट्रिकल है, वो यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है. ठीक है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज दिस इज अ हाइलर एरिया. हाइलर एरिया में जो है पल्मोनरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है. हियर कम्स द ट्रेकिया, ट्रेकियल शैडो आप देख सकते हैं. यहाँ से ट्रेकिया अगर यहाँ पे डिवाइड हो गया, डिवाइड होके लेफ्ट ब्रोंकस यहाँ पे आ गया. एंड ये जो पोर्शन है ट्रेकिया का साइड में जो आ रहा था वो आयोटिक आर्च है. सो यू कैन अगेन इन दिस पिक्चर यू कैन मेक इट वेरी क्लियर. आयोटिक आर्च इस पोर्शन में है. ये जो पोर्शन है दिस इज आयोटिक आर्च, दिस इज ब्रोंकस. ओके, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. ब्रोंकस के पास जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है. एसेंडिंग आयोटा यहाँ पे है, यहाँ से एसेंडिंग आयोटा निकला और यहाँ पे वो आर्च ऑफ आयोटा बना और यहाँ पे जो है वो डिसेंडिंग आयोटा बना. वेरी क्लियर इन दिस पिक्चर. ठीक है, साइड से निकला ना वो एसेंडिंग आयोटा. सुप्रावेनिक क्या होता है, उसका नीचे क्या था, एसेंडिंग आयोटा था. एसेंडिंग आयोटा गोस लाइक दिस. नाउ हियर इट बिकम्स आयोटिक आर्च. यू कैन सी द शैडो हियर, है ना, जो कर्व हुआ है. सो आयोटिक आर्च, और ये होके जो है ये डिसेंडिंग आयोटा होके यहाँ पे निकला. ओके, दैट्स वेरी क्लियर. नाउ कम टू द हाइलम एंड दिस इज अ ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस. ओके, एंड ब्रोंकस का साइड्स में जो हमें दिख रहा है ये जो वाइट पोर्शन है, सो एक्चुअली दे आर द वेजल्स. ओके, सो दे आर पल्मोनरी आर्टरी. नाउ दिस विल बी डायलेटेड इन केस ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज. ओके, बिकॉज ऑफ हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन और ओवर सर्कुलेशन. एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ टू मेक इट वेरी क्लियर, इसी को जो है और ज़्यादा क्लियर होना है तो नाउ द पिक्चर. सो दिस इज, ये जो पिक्चर यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, यू कैन सी ओवर द आयोटा. आयोटा एसेंडिंग आयोटा यहाँ से जा रहा था, ऐसे जाके ऐसे आएगा. दिस इज आर्च ऑफ आयोटा. सी ओवर हियर, दिस इज एसेंडिंग आयोटा, बिकमिंग आर्च ऑफ आयोटा एंड कमिंग डाउन, एंड हियर इट बिकम डिसेंडिंग आयोटा. ओके, सो दैट्स क्लियर.
नाउ दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। सो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी आ रहा था, सो ये जो पोर्शन है, सी दिस इज पल्मोनरी आर्टरी आ रहा है सब, ठीक है। नाउ दिस इज राइट वेंट्रिकल एरिया एंड दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल एरिया, 14 वाला पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज अ 4, 5, 6 जो लिखा है यहाँ पे, दिस बिकम्स अ राइट वेंट्रिकुलर एरिया, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल एरिया, ओके। एंड ये जो है स्पाइन्स है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, दिस आर द स्पाइन्स, नथिंग बट द स्पाइन्स। सो नाउ ऑलमोस्ट ऑल इन द लैटरल व्यू द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। सो लैटरल व्यूज में आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है, नंबर वन इज ब्रोंकस यू हैव टू सी, देन पल्मोनरी आर्टरीज यू हैव टू सी, ओके, देन यू हैव टू सी द आर्च ऑफ आयोटा, देन यू हैव टू सी द हाइलर पोर्शन। हाइलर पोर्शन में तो आपको पता ही है क्या क्या देखना है, हाइलर पोर्शन को आपको देखना है। सो देन कम्स हाइलम हो गया, देन कम्स राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। Now come to the next picture. Yes, because ये जो चीज़ है आपको क्लियर होना चाहिए, therefore I make it very clear. Right pulmonary artery and left pulmonary artery. Now there is a difference in the right pulmonary artery and left pulmonary artery. The reason is the hilum is situated something lower, little lower in the right side compared to the left side. You can see in this picture. ये जो पिक्चर है यहाँ पे ये जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे है, ये क्या है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है लेफ्ट साइड में। सो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे रहता है आपको पता है, हाइलम में रहता है। देखो ये हाइलम जो है कंपेयर टू दिस लिटिल हाई, सो दिस इज अ रूल दैट ऑलवेज हाइलम ऑन द राइट साइड is always lower than the hilum on the left side. Okay, so again this is the hilar portion, trachea, ये जो arch of aorta आपका जा रहा है, ठीक है, and this is the artery. So hilum should be seen for three important things: lymph nodes, then comes the vessels, and then comes bronchus. ठीक है, ये तीन चीज़ आपको हाइलम में देखना है। सो वहाँ पे अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एग्जैगरेटेड है, वो ज़्यादा बड़ा हुआ है, देन वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। यस, अगेन टू मेक इट वेरी क्लियर, दीज आर द हाइलर components. So okay, so these are the different hilar components which are present. Now observe the hilar contents. What are there? Mediastinal shillot. जैसा कार्डियक शिलोट हमने लास्ट क्लास में देखा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये सब मिला के जो एक शेप बनता है, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कार्डियक शिलोट। सो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो सिमेट्रिकल जैसा शेप है वैसे रहना चाहिए। सिमिलरली वी हैव ए शिलोट फॉर द मीडियास्टिनम। टोटल मीडियास्टिनम में क्या शिलोट्स है, जो शेप्स है, सो ये जो है टोटल मीडियास्टिनम का शेप्स है, टोटल मीडियास्टिनम का इस तरीके से हमें मिलना चाहिए। Okay, so mediastinal arteries. Now, left atrium lies below the right pulmonary artery, and infravein enters the mediastinum below the hilum. Now, if you see, hilar point is higher than the right side. Point number 1, देखो आप, look into the point number 1. This, okay, point number 1. So 1, this is nothing but the hilar area. ये जो एरिया है हाइलर है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है ना, तो ये जा रहा है आपका आयोटा, ठीक है, ये आ रहा है आपका पल्मोनरी वेन, ठीक है, तो यही तो एरिया होगा आपका हाइलम एरिया। Okay, this is a hilar area, so this is always lower compared to the left side. Okay, left side it is higher, hilar point 2, ये जो left side में है, this is higher. Then right pulmonary artery, third one, तो point number 3, superior pulmonary veins, बहुत सारे contents है इसमें, ठीक है, interlobar PA pulmonary artery, then basal pulmonary artery. So these are actually again the hilar components. So we have already seen it. यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा आर्टरीज और वेन्स का दिखाई पड़ेगा आपको। राइट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इंफ्रा पल्मोनरी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी वेन। ओके, सो दिस इज हाउ द वेन्स आर। टोटली यू कैन से द हाइलर कंपोनेंट एरिया इज फुल ऑफ वेजल्स। मिडल साइड में है, मिडल सरफेस ऑफ द लंग में है, इट इज फुल ऑफ द वेजल्स। ओके, सो व्हेन द वेजल्स आर देयर, सो यूजुअली इट विल नॉट गिव एनी, वेजल्स में ब्लड रहता है, सो इट विल नॉट गिव एनी ब्लैक शैडो, सो मोस्टली इट गिव्स ए वाइट शैडो। Okay, it gives a white shadow. That also, when the vessels are dilated and there is excessive amount of the blood which is present, it gives more white shadow. So exaggeration, accentuation or exaggeration of the hilar lymph node area or hilar area, it should be always seen thoroughly. ठीक है, उसमें अच्छे से तौर से देखना है कि, और उस एरिया के ऊपर कमेंट करने से पहले आपको थोड़ा
केयरफुल भी रहना है. द रीजन इज हाइलर एरिया में बी मोर वाइटिश समटाइम in children because of a formation of the primary complex. Primary complex means it is nothing but the calcification of the lymph nodes. So lymph nodes यहाँ पे बहुत सारे हाइलर lymph nodes है. So primary complex जब बनता है तो हाइलर lymph nodes क्या होता है, उसका फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होता है. Even after giving the BCG vaccination also this can happen. Okay, so primary complex formation will be there. So that area may be looking more whiter or opaque. ठीक है, white ही दिखाई पड़ेगा. But every time you cannot say that there is some vascular problem or some other problem, because that particular exaggeration or accentuation is quite normal in the children because of the calcification or fibrosis or formation of the primary complex in children. So therefore, when you are commenting on the hilar complex, hilar area in children, you should be always little careful. देख के बताना है कि क्या हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली भी जो है वो थोड़ा आपको वाइटिश ही दिखाई पड़ेगा. लेट अस सी सम ऑफ द एक्सरेज. Yes, so this is now the right hilar point and left hilar point. You can see the difference. See, right hilar point is little bit low and left hilar point is little bit ऊपर है. ठीक है, this is in the क्या है कि आपका PA view है. Okay, now this is a hilar point. Try to understand, see how much whitish it is. जितना भी है ना यहाँ पे, जितना whitish है ना, क्योंकि ये सब वेजल्स है. ठीक है, ये सब वेजल्स है. सर ये थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है ना ओपेसिफिकेशन को, तो फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करें? वो तो आगे देखेंगे, आगे आएगा. ठीक है, आगे वाला स्लाइड में सब आएगा. तो बेसिक्स है, जस्ट बेसिक्स वी आर गोइंग नाउ. सी, बट मैं बोल देता हूँ, आपने पूछ लिया तो. सो हाइलर पॉइंट इन द राइट साइड प्रेजेंट इन द लोअर साइड, इन द लेफ्ट साइड इट इज प्रेजेंट इन द अपर साइड. नाउ so many vessels are there. How to differentiate the vessels and as well as some of the other patches. ठीक है, कोई फाइब्रोसिस भी हो सकता है वहाँ पे, कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है, बहुत सारे पैच होगा. इफ इट इज ए वैस्कुलर पैचेस लाइक पल्मोनरी आर्टरी होगा, आयोटा का या जो भी है, वेन्स का है, जो भी है. ठीक है, जो भी वहाँ पे वेसल आएगा और उसका जो पैच है इट गोज ऑन टेपरिंग. सो इफ यू सी दिस पैचेस, सी यहाँ से जो निकला यहाँ पे होते होते पतला होता चला गया है ना. तो यहाँ से भी जो निकला और इतना ही ब्रॉडनेस यहाँ पे नहीं है, पतला होता गया. सो इफ इट इज वेजल्स लाइक पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेट्रा, सो दे गोज ऑन टेपरिंग फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी के लिए जब जा रहे हैं, दे गो ऑन टेपरिंग. बट इफ इट इज ए फाइब्रोसिस, इट इज ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम विड्थ. इसका जो है विड्थ सेम रहेगा. इफ इट इज ए मास, वो राउंड दिखेगा. दैट विल सी. सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे तो लेबलिंग किया गया, तो यहाँ पे देखो आप. नाउ दिस इज द हाइलर एरिया इन द राइट साइड, दिस इज इन द लेफ्ट साइड थोड़ा ऊपर है. ठीक है, और यहाँ पे देर आर सो मेनी वेजल्स आर देयर. दिस वाइटिश पोर्शन, दे आर नथिंग बट द वेजल्स. ओके, इफ यू लुक इनटू दिस वेजल्स फ्रॉम द हाइलर एरिया व्हेन दे कम डाउन और कम गोइंग अप, सो दे गो ऑन टेपरिंग, एंड सम ऑफ दिस जो यहाँ पे वाइटिश दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ब्रोंकोवेसिकुलर मार्किंग. से यहाँ पे आर्टरी आ रहा है, वेन आ रहा है, वो डिवाइड होते होते आगे जा रहे हैं. ठीक है, और वहाँ पे एक ब्रोंकस भी है ना, राइट में राइट ब्रोंकस, लेफ्ट में लेफ्ट ब्रोंकस. ये जो ब्रोंकस भी जो है टर्शियल सेकेंडरी में डिवाइड होता जाएगा. सो व्हेन इट गो डाउन लाइक दिस ब्रोंकस, व्हेन दे गोइंग डाउन, व्हाट इज हैपनिंग, इट्स गोइंग ऑन टेपरिंग. यही का जो विड्थ यहाँ पे नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकोवेसिकुलर मार्किंग. ओके, एक हो गया वैस्कुलर मार्किंग, एक हो गया ब्रोंकोवेसिकुलर मार्किंग. वैस्कुलर मार्किंग्स आर रिलेटेड टू आर्टरी एंड वेन्स. ब्रोंकोवेसिकुलर मार्किंग्स आर रिलेटेड टू डिविजन ऑफ द ब्रोंकस. इन सम ऑफ द कंडीशन ब्रोंकोवेसिकुलर मार्किंग्स आर एग्जैगरेटेड, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेसिकुलर मार्किंग्स आर सीन इन सम ऑफ द कंडीशन. यूजुअली इट इज सीन इन केस ऑफ एलर्जी कंडीशन. जो भी एलर्जी कंडीशन है वहाँ पे ब्रोंकोवेसिकुलर मार्किंग्स आर मोर एंड मोर प्रोमिनेंट. नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइलर एरिया. Now, so hilar area, there will be lymph nodes, there will be vascular marking, there is a bronchus. See, now this is trachea. Okay, ये जो यहाँ पे आ रहा है trachea. So trachea is coming down. Just identify trachea is coming down. Now see this portion here, the trachea is dividing. Okay, this portion it is dividing. यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके डिवाइड होके ये राइट में चला गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डिवाइड होते ये लेफ्ट में चला गया. Okay, the area where actually दिस इज डिवाइडिंग, दैट इज कॉल्ड एज करीना. करीना कपूर नहीं है, करीना, KARINA है. ठीक है, करीना. सो दिस इज करीना. सो करीना, देयर इज ए एंगल, एक एंगल में वो डिवाइड होता है. दैट एंगल शुड बी ऑलवेज 60 डिग्री. 60 डिग्री एंगल में वो डिवाइड होता है. सी यू कैन सी द ब्लैक शेडोज. दिस इज द ब्लैक शेडो, दिस इज नथिंग बट योर ट्रेकिया.
ट्रेकिया इज ऑलमोस्ट सेंट्रली प्लेस्ड एंड यहाँ पे आते देखो ये ब्लैक शेडो यहाँ पे आ गया, दिस इज राइट ब्रोंकस, और यहाँ पे आके थोड़ा नीचे से यहाँ पे आके हाइलम में, सो दिस इज लेफ्ट ब्रोंकस. Okay, so this is very important, you have to understand whenever you are commenting on hilar area. Yes, the same thing is given here in detail. Now there should not be any confusion after looking this particular photo or figure. See, trachea is there, which is coming like this. This is the carina portion where it is divides. यहाँ से जो है वो राइट ब्रोंकस बन गया, यहाँ से जो लेफ्ट मेन ब्रोंकस बन गया, और ये आ गया आपका हाइलर एरिया. आप हाइलर एरिया में देखेंगे, देखो पूरा आर्टरी है, अपर पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, ठीक है, इंफीरियर पल्मोनरी आर्टरी, पूरा एरिया पल्मोनरी, इंफीरियर पल्मोनरी वेन, यहाँ पे भी ऐसा ही है. तो ये पूरा का पूरा आर्टरीज है, आर्टरी और वेन्स है. लिम्फ नोड्स को इसको देखना थोड़ा मुश्किल है. ओके, सो दिस इज, एंड इफ यू सी ओवर हियर आयोटिक नॉच, सी, ओके, आयोटिक नकल है, आयोटिक नॉच वेरी क्लियर है, ठीक है. एंड नाउ इफ यू लुक इनटू, सो हियर पोर्शन यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरीज आएगा, आयोटिक नॉच आ गया, आर्टरी आयोटिक पल्मोनरी विंडो आ गया, और उसके बाद राइट लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज आ गया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल आ गया. तो ये जो पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कल देखा था, सबसे ऊपर है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के नीचे असेंडिंग, कौन सा सुपीरियर वेना केवा के नीचे क्या है, असेंडिंग आयोटा, असेंडिंग आयोटा, और उसका नीचे अजाइगस वेन, उसके ऊपर सर, उसके ऊपर 4th नंबर. और उसके बाद ये वाला पोर्शन, दिस इज राइट एट्रियम. ये जो यहाँ पे कॉन्वेक्स दिखाई पड़ रहा है, दिस इज नथिंग बट राइट एट्रियम. राइट एट्रियम है ये, हाँ राइट एट्रियम ही. और ये वाला पोर्शन क्या है, राइट एट्रियम सर, राइट वेंट्रिकल. ये तो दिखती नहीं है, मतलब इसमें ये एंटेरियर पोस्टीरियर है ना, ये इधर बीच में रहती है राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल तो यहाँ पे रहेगा, हाँ उधर रहेगा, ठीक है. सो दिस इज कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एंड दिस इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल, दिस इज कॉस्टोफ्रेनिक एंगल. चलो, सो सेम थिंग वी आर जस्ट रिवाइजिंग. Now again, if you want have a revision now, here again the same things we are telling. ट्रेकिया आप देख सकते हो, जिस तरीके से ट्रेकिया आ रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और ये आपका क्लेविकल है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज दिस, फर्स्ट रिब. नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू काउंट द रिब्स. देखो फर्स्ट रिब ऐसा है, तो ये अगर फर्स्ट रिब हो गया ना, तो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस कौन सा है, ये है. जैसा हम सोचते हैं ना, ये नहीं है, ये हम फर्स्ट रिब इस तरीके से आता है. ओके, तो ये फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया. सेकेंड रिब कहाँ से आ गया, ऐसे आ गया, तो ये सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया. ओके, सो दिस इज 1 2 3. सो दिस काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली वी विल मेक मिस्टेक्स. ऐसे स्ट्राइट नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, रिब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, सॉरी ऑब्लिक्वली. सो रिब्स का जो काउंटिंग है वो इस तरीके से होता है. दिस इज फर्स्ट रिब, दिस इज सेकेंड रिब, दिस इज थर्ड रिब, दिस इज फोर्थ रिब, इस तरीके से. ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज गैस्ट्रिक बबल, एवरीबॉडी नोस. एंड दिस इज राइट डायफ्राम, दिस इज लेफ्ट डायफ्राम, कॉस्टोफ्रेनिक, कार्डियोफ्रेनिक, and right pulmonary artery. See, look at the hilar area, right pulmonary artery. Okay, left pulmonary artery, aortic window. ये जो नॉच जैसा है ये aorta pulmonary window, aortic pulmonary window. Okay, and ये क्या है ये, what is this, ये क्या है, aortic knuckle. Aortic knuckle, yes, aortic knuckle. Okay, so I think by this time it is very very clear. Again same vessel. See, जो hilar area आप देखो, just look into the hilar area, say how much whitish it is, है ना, because this whitish depends upon the circulation. अगर हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन चल रहा है कहीं पे भी, तो whitishness बढ़ेगा. That means tetralogy of the fallet, then comes VSD and PDA, all these conditions, there is a hyper circulation. Okay, so then
there will be overflow of the blood from the left ventricle to right ventricle, from the right ventricle to the pulmonary vein. So naturally it is the pulmonary vein which will go into dilate. Okay, so therefore you can find this type of pictures. So now if you see over here, this is right atrial portion, right atrium. Okay, ये जो है आपका aorta वाला portion है. ये right atrium के नीचे क्या है? राइट एट्रियम के नीचे जो है एंगल है, और इसी साइड में यहाँ पे रहेगा इंफ्रावेना केवा. इंफ्रावेना केवा राइट एट्रियम में ओपन होता है, पता है, नीचे से, और ऊपर से राइट एट्रियम को जो ओपन होता है वो सुपीरियर वेना केवा है. ठीक है, दिस इज द पोर्शन ऑफ असेंडिंग आयोटा, क्योंकि यहाँ से आयोटा ऐसा लेकर के ऐसा जाता है. ठीक है, एंड बाकी तो आपको पता है. नाउ काउंटिंग ऑफ द रिप्स, अगेन ट्राई टू काउंट हियर द आयोटिक नकल. ओके, डिसेंडिंग आयोटा, आयोटिक नकल एक्सेट्रा. एंड रिप काउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आता है. शुड नॉट मेक मिस्टेक इन काउंटिंग ऑफ द रिप्स. ओके सर, कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा में इसमें दिक्कत आएगी ना? आगे सब कुछ आ जाएगा. दिस इज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी. ऑल द पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट्स विल कम्फर्ट. ठीक है, ये मैं अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ. ओके, नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो बेसिक्स हो गया. नाउ वी हैव सीन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, है ना, कि एक्सरे में आप देखेंगे तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या क्या देखना है वो हमने सब देख लिया. अब हम थोड़ा और बेसिक्स में आ जाएंगे. लाइक व्हेन यू आर टेकिंग द एक्सरे, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स? नंबर वन इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज that we will see in the next part.